Every sentence, every word, even every joke you do is not just sound, is not just your voice, it's vibration, it's energy, and it affects you, the people around you. It gives hopes to the people. It creates fears inside of you and also inside of the people around you. It not only affects your outer world, it builds and design your inner world. Words have power. और इसको समझते हैं, हम इसकी गहराई में धीरे धीरे उतरेंगे. Whenever I am saying something, okay, suppose I said, I can't do this, right? So it shows so much about me. The language is I can't do this, I cannot do this. It comes from my beliefs, it comes from my intention, and when it comes, it takes place into this universe, into this world, and it reflects back. What I'm meaning here, इसको break down करते हैं. Word I use, belief, intention, and it reflects back. It reflects back से समझते हैं. Reflects back यानी कि अभी हमने inner और outer world की बात करी है. Many people are so much frustrated these days. कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है. चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, और दूर से देखने पर लगता है कि उस इंसान की लाइफ बहुत सॉर्टेड होगी, लेकिन और कोई हमें भी देख रहा है एंड वो कह रहा है कि इसकी लाइफ बहुत सही है, सॉर्टेड है. बट ऑन आवर लेवल यू विल फाइंड कि जितने पास तुम इस इंसान के आते जाते हो, तुम उससे हमेशा दुखी पाते हो, फ्रस्ट्रेटेड ही पाते हो, या फुलफिलमेंट महसूस नहीं होती है. बिकॉज वी आर सो मच इंटेंगल्ड इन आवर आउटर वर्ल्ड. वी ऑलवेज से कि ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये चीज़ नहीं है मेरे पास, दैट इज इन आउटर वर्ल्ड, या फिर मैं इस काम को करने के भी योग्य नहीं हूँ, या आई कांट डू दिस, आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू डू दिस. दिस इज आवर आउटर वर्ल्ड. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू डिज़ाइन योर इनर वर्ल्ड. अब जैसे ही मैंने इनर वर्ल्ड वर्ड का इस्तेमाल करा, व्हाट इट मीन्स, इसमें क्या क्या आता है. इनर वर्ल्ड मीन्स योर डिज़ायर्स, your attachments, your fears, your insecurities, your dreams, your hopes, your beliefs, your limitations, and your past conditionings, and your pleasures. ये सारी चीज़ें आपके इनर बीइंग, इनर वर्ल्ड को डिज़ाइन करती हैं. और जो तुम हो, यानी कि जो तुम्हारा इनर वर्ल्ड है, वही रिफ्लेक्ट बैक होता है हमारे आउटर वर्ल्ड पे. इट मीन्स इन अ वे यू क्रिएट योर रियलिटी. वेल, जब वर्ड रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, राइट? बट यहाँ पे हम चेंज करने की बात कर रहे हैं. ओके, सो हम इसको रियलिटी नहीं बोलेंगे. दैट रियल रियलिटी इज समथिंग एल्स दैट योगीज एनलाइटेंड पीपल हैव नोन, राइट? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग आवर रियलिटी. कहीं ना कहीं परसेप्शन भी बोला जा सकता है, बट अभी हम उस डिबेट में नहीं घुसेंगे. We are talking about the inner world and designing our inner world, healing our inner world to create that outer world. So it is not like कि हम outer world में कोशिश करते रहते. Suppose I want to be disciplined, right? I want to be disciplined. अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ that how words are magic and how to learn the words you speak. Unconsciously या unawarely जो आप words use करते हैं, that shows who you are. So I want to be disciplined. Here, if I break down, यहाँ पे I है, I यानी कि मैं, okay? And that I wants to be disciplined. Wants यानी कि desire, I want something, right? When I say that I want, it means I don't have that thing, okay? That's why I'm saying I want to be disciplined. So it means me, whole me, and wants and desire, be disciplined. That is my goal, and okay, that is my goal that I want to achieve it. Okay. Now, the I, before I go to my wants, I have to study this I, यानी कि मैं, who I am. I want to be disciplined, but that should be secondary step.
बट वी ऑलवेज फंसे हुए वहां पर कि आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू गेट दैट, आई वॉन्ट टू बी मिलियनर, आई वॉन्ट टू मेक मनी, आई वॉन्ट टू बी गुड, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू हैव दैट गर्ल, दिस ऑल थिंग्स, बट दिस इज सेकेंडरी. Anything you want, any desire is secondary. First thing is I. Even the sentence we start with I, but we forget the I. होता क्या है, अभी हम समझेंगे कि I से और क्या मतलब है, बट होता क्या है कि जब हम I बोलते हैं, I want to be this, I want to be disciplined, so conflict arise हो जाता है. कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है आई में, जो मैं ऑलरेडी अभी हूँ, यानी कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, यानी कि मैं टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, या मैं करना मतलब मैं बहुत सिस्टमैटिक नहीं हूँ, मुझसे काम नहीं होता. दिस इज मी, ओके, आई. एंड नाउ वांट, दैट इज माय डिजायर, एंड दैट इज गोल्ड, डिसिप्लिन. तो जो मैं हूँ और जो मैं होना चाहता हूँ, इसमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट हमेशा रहता है, राइट. एंड उसमें बड़ी दिक्कत होती है. यदि जो जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ये कहते हैं विल पावर, नो व्हाट दे से, डू इट नो मैटर व्हाट यू फील, इट्स ट्रू, बट it is not helping you. If it's true, then why not everyone is disciplined? Why not everyone is experiencing that fulfillment? Because the chaos is still there. And when there is chaos, and the problem is you are not even aware of that chaos. So when there is chaos, you are not even aware of that chaos, and you are on your journey to become disciplined, you are going to lose, you are going to fail. And you will not be whole, you will not be able to experience that fulfillment, that happiness, because you are always in the chaos fighting, and you don't even know that what you are fighting. So that's how we lose, that's how you lose. कहीं ना कहीं आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि before you put the word want after I want, study the I and study yourself. This is most important thing, and that I is your, when I say I, मैंने inner world में कुछ बातें कही, beliefs, fears, hopes, desires, attachments, pleasures, right, intentions, purpose, these all things, emotions, these all things form your inner world, and inner world forms the I, right. So when I say I, it means you need to study your inner world. और अभी भूल जाते हैं सब कुछ कि क्या होना है, क्या बनना है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो. हालांकि जो चाहते हैं, डिज़ायर्स है, वो हम जब इनर वर्ल्ड को स्टडी करेंगे, यानी कि आप जब अपने इनर वर्ल्ड को स्टडी करेंगे, यू वुड बी बिकमिंग अवेयर ऑफ योर डिज़ायर्स एंड वांट्स, दैट व्हाई यू वांट टू बी डिसिप्लिन, और व्हाई यू वांट टू बी समथिंग, एंड व्हाई यू डोंट वांट टू बी समथिंग एल्स. क्योंकि कहीं ना कहीं पता चलेगा जो डिज़ायर्स हैं ये कंडीशनिंग का हिस्सा हैं. कंडीशनिंग यानी कि कोई चीज़ बचपन में या कभी हमने बस मान ली बिना खुद को जाने, क्योंकि किसी ने बोला या किसी किताब में पढ़ दिया, किसी सक्सेसफुल लोग इंसान ने ये बात कही है, तो आई हैव टू फॉलो दिस बिकॉज ही फॉलोड इट. इट क्रिएट्स कंडीशनिंग इन योर माइंड, राइट. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हम आई में क्या स्टडी करने वाले, अपने इनर वर्ल्ड को स्टडी करने वाले. एंड देन कम्स, जो भी चीज़ है वो इसके बाद ही आती. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस लॉ, कि अट्रैक्शन का काम करता है कि लोगों को लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इस तरीके से काम करता है कि थिंग्स कम्स टुवर्ड्स यू, लाइक यू अट्रैक्ट, बट इट डजंट वर्क लाइक दिस. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फ्रॉम इनर, लाइक यू बिकम योर इनर वर्ल्ड, when you design your inner world, when जब तुम सारा कचरा साफ करते हो, कंडीशनिंग अपनी ड्रॉप करते हो, तो वो धीरे धीरे हील होने लगता है, and you become worthy of the huge money, you become worthy of great success, you become worthy of happiness, because it is about knowing yourself. We all are worthy of huge success, we all are worthy of creating miracles in this world, we all are. ये मैं कि हाइप या मोटिवेट करने को नहीं कह रहा हूँ, it is true, but we don't know it. It is about knowing, not believing, not motivating yourself that I can do it and I'm born for it. No, it is about experiencing that you're born for it. It is about knowing and experiencing. दो word आ रहे हैं यहाँ पे. You have to know that okay, this is what I am meant for, and you will just feel it. When you will start knowing yourself, you will feel it. Okay, ये मेरे natural attraction है, because the things you choose, your career, your books, whatever you speak about, it's not just you are choosing that thing is choosing you too. और वो तभी रिवील होता है when you spend time with yourself. So law of attraction इस तरीके से काम करता है
देयर इज अ बुक हाउ टू गेट रिच बाय I'm forgetting the name. उसमें लिखा है कि when you are worthy of $100,000 you get it. When you really know it, you are worthy. Your inner being, your inner world accepts it. Now you say yourself that I am worthy of 10 lakh rupees per month. Say, there is a voice inside of you that knows that it is a lie. It means your inner world does not accept this fact that you are capable or you can earn this much money in 1 month. Are you able to understand what I am trying to say? और बहुत कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है हमारे पूरे बीइंग में, हमारे पूरे बात करने के ढंग में, काम करने के ढंग में. And that's the reason you find even the person with good money, with good income is not happy, not fulfilled, is not really enjoying the life. He's also frustrated. I am also frustrated. Then what's the difference? Who is happy and who is fulfilled and who is serving? ये सर्विंग के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे. बट टुडे, अभी तक, I just tried to make you aware, tried to tell you that how you are the reason of your own destruction. You are the reason your life sucks. You are also the reason that your life will be so beautiful. Your world will be so beautiful. But it all starts with you, with I, knowing yourself. Discovering yourself तो आपने हर जगह सुना ही है ये चीज़ कि discover yourself. बट जो डिस्कवरिंग योर सेल्फ का भी जो पूरी जर्नी हो जाती है वो भी बोरोड हो जाती है. बोरो यानी उधार लिया. वो कोई भी ज्ञान है, इवन दिस वीडियो वट एवर आई एम स्पीकिंग, इसको अपना मत बनाओ. अपनी चीज वही होती है जो अपने भीतर जन्म लेती है. किसी भी ज्ञान को, किसी भी किताब को, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, आई रीड लॉट ऑफ पीपल, बट आई डू नॉट फॉलो दैम. आई एक्सपेरिमेंट इट विद माई लाइफ, विद माई ओन टच, वट एवर आई रीड. एंड आई सी दैट मेरी लाइफ में कैसे अनफोल्ड हो रहा है एंड फिर उससे मैं क्या सीख पा रहा हूँ. एंड देन आई कम एंड राइट, दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई डिड दिस. बिकॉज वी ऑल आर यूनिक. हम एक यूनिकनेस के साथ पैदा होते हैं. यू एंड आई एंड एवरीवन. ऐसा नहीं कि कुछ सिमिलर है, कुछ सब अपने आप में इन देयर ओन वे इज वेरी यूनिकनेस. एंड देन फाइंडिंग एंड डिस्कवरिंग अबाउट दैट यूनिकनेस इज क्रिएटिविटी. We can talk about creativity in some other videos, but ये uniqueness की वजह से you should never borrow any books wisdom. मैं नहीं कह रहा किताबें पढ़ो मत. read if you want to. read, listen to the people, but understand, connect the dots and experiment with yourself. and फिर जब आप experiment कर रहे हैं तो there the knowing will take place, that you will know yourself. You won't believe anything, right? तो अब कोई भी आपने टेक्निक पढ़ी, किसी तरीके से पढ़ी है, जो भी मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ, तुमने सुनी एंड यू फाउंड इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग, यू क्यूरियोसिटी व्हेन यू वांट टू डू दिस, डू इट. बट ड्रॉप एवरीथिंग एंड देन डू इट. ड्रॉप एवरीथिंग. एवरीथिंग से क्या मतलब है कि जो भी दिमाग में अगर आ रहा है कि मैं ये कर लूंगा ना तो ये हो जाएगा. सपोज तुमको लग रहा है कि एक बार ये कर लिया ना तो फिर मैं प्रोडक्टिव हो जाऊंगा या मैं इतने पैसे कमा लूंगा. ड्रॉप एवरीथिंग. योर ओनली गोल इज टू जस्ट फील इट, नो इट, experience it. That's it. Whatever it is about. It is about love, relationship, money, spiritual life, meditation, anything. Make that thing your own. Simple. And then speak about it. But remember, it's yours. And it's not even yours it's yours. When I'm saying it's not even yours, उसमें हम कुछ स्पिरिचुअल डेप्थ रीजन है, इट फ्लोज थ्रू यू एंड द गॉड मेक्स इट हैपन थ्रू यू. लेकिन इस वीडियो में वो बात नहीं करेंगे. बट इट बिकम्स योर्स. अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं. सो पहली चीज़ हमने ये समझ ली. तो आप, लेकिन मैंने कहा कि जो भी आप चीज़ सुने उसको अपना बनाए. नोइंग विल टेक प्लेस, जो भी मैंने अब तक यहाँ कहा, शायद अब आप ये फॉलो भी करें. बट आज तक जो किताबें हमने पढ़ी हैं, आज तक जो लोगों से हमने सुना है, बचपन में अपने पेरेंट्स से सुना है, या फिर आसपास सोसाइटी में देख करके जो बिलीफ हमारे अंदर फीड हो गए हैं, या फिर इंस्टाग्राम की रील्स देख करके के जो फीड हो रखा है, अबाउट परसेप्शंस बन रखे हैं, उसको ही अनफोल्ड करना है, उसको ही देखना है, विटनेस करना है, उसी को बाहर निकालना है जो यूजफुल नहीं है. बिकॉज इट मेक्स यू हु यू आर. सिंपल. क्योंकि जो मेक्स यू हु यू आर एंड देयर इज रियल यू. ये जो हु यू आर है ना, मेक्स यू हु यू आर, जो बिलीव्स है न ब्ला 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 करके आपका ये यू बना,
इसी को समझना है, बिकॉज व्हेन दिस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, योर रियल यू, योर सेल्फ विल बी नोन टू यू, एंड इन दैट नोइंग miracles happen. Miracles, by miracles I mean you know yourself, you know your purpose, you know a lot of things about you. You relax, you feel so much relaxed. There is no rush, there is no running towards a goal. You are okay, you are protected. These kind of insights comes through you. You experience it. I can say, you can say it's easy, like I am protected, okay, I am protected, but I am blessed, I am blessed. No, it is about feeling and knowing, experiencing that you are blessed. Okay, now everyone ask me whenever I start speaking about this, जब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि you are saying right, but how I am going to do this? Even this how, I can give you the how, I can give you the ways, but it makes, यही important है, ध्यान समझना कि जब मैं आपको वेज दे दूंगा, जो कि कोई वेज है ही नहीं, बट चलो जिस तरीके से मैंने करा, जिस तरीके से मुझे लगा मैंने किया, वो मैं आपको दे भी दूंगा, then again it becomes another form of conditioning, a follower kind of thing. You follow me, maybe it work for you, maybe it doesn't, but यहाँ पे समझना, ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो जाता है जब मैं कहता हूँ आपको ये करना है और फिर आप कहते हैं कि हाउ एंड देयर इज नो हाउ. ये थोड़ा समझने वाली बात है. एज अ बिगिनर ये समझ नहीं आती कि देयर इज नो हाउ, बट आई वुड हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू गिव यू हाउ, बट विद दिस अवेयरनेस कि जो हाउ है it should be really flexible. I would try to give you a direction, but I will try not to give you the step by step, because the step by step kills your own uniqueness. Feel it, know it, and you will know कि मेरे को ये करना है, या फिर you will know मेरे को इसको समझना है. तो start करते हैं. Number one thing, you need to get little silent. You need to start speak very less. जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो. That is the first step. अब यहीं पर it sounds very simple, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलूँगा, बट यू सी कि तुम कितना चपड़ चपड़ करते हो, कितनी बातें विदाउट एनी रीजन. यू जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग और कीप ऑन सेइंग, बिकॉज यू कांट फेस द साइलेंस, यू कांट बी इन साइलेंस. जैसे साइलेंस आने लगती है, आई डोंट नो, इट आई हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट साइलेंट, I feel this, I should speak, it feels very haunting sometimes, but with time I think I became very quiet, I became very silent. I don't want to speak. Whenever it's necessary I speak, because I want to save my energy for these kind of videos. Here I am speaking with a purpose to maybe someday someone will watch this video. If this video can help one person, then I serve, and the serving is the only thing you should take care, because if you know कि कहाँ सर्व करना है, your life will be so beautiful, because that's what we are here for, to serve the people. जो हमारी यूनिकनेस है, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उसके थ्रू एक दूसरे को सर्व करना, and this is how we all will grow. And I'm serving, this is my blessing to speak like this. I speak without scripts, I speak without any topics. I just sit and whatever I feel I start speaking. So if you're listening me, there are cuts. अगर पसीना आ रहे हैं वो पूछने के लिए ही cuts होंगे, उसके अलावा there are no cuts. It's just like एक शॉट में वीडियो बनाई जाती है, जो आता है मैं बोल देता हूँ. हाँ, कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ बोलते बोलते, फंबल कर देता हूँ, बट दिस इज हाउ आई वांट टू इम्प्रूव. दिस इज हाउ आई विल इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल, आर्टिकुलेशन स्किल्स. एंड अब तक आई थिंक थोड़ा ठीक ठीक कर रहा हूँ, दैट यू आर गेटिंग. सो सर्विंग इज इम्पॉर्टेंट, नोइंग इज इम्पॉर्टेंट. सो दोबारा वापस आते हैं कि साइलेंस, स्पीक whenever there is necessity. अगर ज़रूरत नहीं है तो मत बोलिए. Why? Because in silence, only in silence, you will feel yourself, you will start knowing yourself. मैं सीधा ये भी बोल सकता हूँ कि आप ध्यान में उतर जाइए, मेडिटेशन करिए रोज़, and you will start experiencing yourself. Well, it's true, but I'm not starting with meditation. बिकॉज जैसे ही मैं मेडिटेशन ध्यान बोलता हूँ, कुछ लोगों के कुछ बैरियर्स बने हुए हैं इसके अराउंड भी, कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, या स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन इज समथिंग एल्स. दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग मेडिटेशन एज अ टास्क, ध्यान एज अ टास्क. ये टास्क है, सुबह करना है 5 बजे 6 बजे, 1 घंटे का 30 मिनट का करता हूँ, तुम 5 मिनट का करते हो, तुम 40 मिनट का करते हो, तुम 10 मिनट. लाइक इज इट इवन अ टास्क? They have completely destroyed this business side of spirituality. They have completely destroyed the meaning of dhyan, meditation.
दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टार्ट विद मेडिटेशन। तो तुमको लगेगा सुबह एक टास्क करना है, इसलिए मैंने मेडिटेशन नहीं बोला। इन सम अदर वीडियो आई वुड टॉक अबाउट इट। अभी भी हम थोड़ा ध्यान की बात करेंगे, बट पहला जो चरण है, लेवल है, वो ये है। लेवल नहीं है कुछ भी, ये वर्डिंग हटा दो, ये लेवल चरण कुछ नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग साइलेंट, इट्स अबाउट स्पीकिंग व्हेनेवर इट्स नेसेसरी। ओके, देन स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। मैं आपको वेज नहीं दे रहा हूँ, ये सब चीजें जब आप करेंगे यू वुड नो द वेज योरसेल्फ, योर ओन वेज। साइलेंट रहिए। सेकंड, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इन नेचर, हो सके तो गो एंड सिट अंडर अ ट्री एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अकेले जाना है, अलोन, और वहाँ जाकर बैठना है, एंड जस्ट यू हैव टू, एंड प्लीज हो सके तो प्लीज सिट स्ट्रेट या फिर लेट जाएं, ये भी कर सकते हैं। एंड जस्ट फील योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ईच एंड एवरी पार्ट, आराम से। यू सी, अभी भी अगर वीडियो सुन रहे हैं तो यू आर वेरी, क्या कहते हैं, अभी रिलैक्स करो, लाइक रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर लेग्स। तो तुम देखोगे कैसे दबाए हुए, जोर से पैर दबा रखे थे एंड हाथ थे। अब यू व्हेन यू स्टार्ट रिलैक्सिंग तो एक रिलैक्सेशन होती है। सो इन दैट रिलैक्सेशन लेट जाइए, बैठ जाइए एंड डू नथिंग, एक्सपीरियंस योरसेल्फ, फील योरसेल्फ। यस, थॉट्स विल बी देयर, क्या करना है क्या नहीं करना, पीपल विल बी देयर, नॉइजेज होंगी आसपास, उन पर ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे बस खुद की बॉडी को देखने कैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। एक जगह ध्यान लगा लीजिए, अपने हार्ट पर ध्यान लगा लीजिए या बॉडी लेग्स पर लगा लीजिए एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ। ठीक है। थर्ड, स्टार्ट राइटिंग। ऑन माय अदर चैनल आई टीच राइटिंग, बट दैट इज लाइक डिजिटल राइटिंग। इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग यू राइट व्हाट यू फील, दैट इज important, and it is not easy because you are not able to understand that what this feeling is about. समझ नहीं आता ना, that's why we get so much bored, so much sad. And if I ask you that why you are sad, you say you don't know, and you try to rationalize it कि maybe इसकी वजह से मैं sad हूँ, but you never know why you are sad, right? Why you are angry or why you get so much angry. So that's why रोज 5 से 10 मिनट you need to start writing whatever comes to your mind. Don't try to find anything. Don't try to find your sadness. Don't try to write poetical essays or try to write some great huge line. Just write the bullshit that comes to your mind. If the mind comes, we close your mind and a donkey is coming, then write the donkey. The donkey is in the water and the जो भी आ रहा है उसको लिख दी, हिंदी में, इंग्लिश में, doesn't matter, उसको लिखना स्टार्ट कर। These are some basic steps. You start spending time with yourself. You speak when it's necessary. You conserve your energy. And you write what you feel, something will start shifting. ये नहीं कह रहा हूँ इसे करते ही कुछ रिवोल्यूशन घटित हो जाए, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे वाले हैं कि करना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। क्योंकि ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत सटल और बहुत धीरे से आता है, और उसको धीरे लाने के लिए इफ यू वांट टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप्स तो नहीं है, बट ये जब आप चीज़ करेंगे तो होगा। स्टेप्स, मैं बार बार क्यों स्टेप देने से डर रहा हूँ? डर नहीं रहा मतलब वाई आई डोंट वांट टू गिव यू स्टेप, बिकॉज इट कीप्स यू कंडीशनड। दैट्स वाई जब मुझे भी कोई स्टेप्स देता है, आई डोंट वांट द स्टेप्स बिकॉज इट विल कंडीशन। आई वांट टू नो, आई वांट टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, कनेक्ट इट एंड देन एक्सपेरिमेंट इट व्हाटएवर आई फील लाइक। I would take this step first, even if it's the step 5. I'm feeling I would take this step first. I would take it. होगा क्या? Maybe I would fail. I need that failure because in that failure, the knowing exists, knowing of myself, and through that knowing, I would grow and transform. I hope you are getting कि कैसे, why, what is the reason why I don't want to give you steps. But जो भी मैंने चीज़ बताई, spend time with yourselves, spend time with nature, speak less, write what you feel. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को जानने में मदद करें। लाइक एज आई सेड, आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन। तो आई वॉन्ट टू बी, आई क्या है, यानी कि आप डिसिप्लिन नहीं है, तो क्यों नहीं है? यू सपोज इट कम्स कि मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, सो वाई यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, राइट? यू से आई डोंट नो, हाउ वुड आई नो? देन व्हेनेवर you are sitting on your bench and doing anything, you want to do something, right? You're not able to take action. Here comes awareness. Awareness means seeing yourself. कि क्या हो क्या रहा है जब एक्शन का टाइम हो रहा है, तो अंदर हो क्या रहा है? Am I feeling fear in my chest, or I am feeling lazy, or my mind has started giving me that rationalization कि यार ये अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, it will work out, या there is fear of failure, or there is fear of success. Yeah, because
इवन इफ इट्स फेलियर, इवन इफ सक्सेस और फेलियर, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी. तो क्या वो फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज हैं, या फिर आई जस्ट लाइक बीइंग नॉन एक्शन टेकर इनसाइड ऑफ माई सेल्फ, राइट? You will know it whenever this happens. So now I start knowing myself. Okay, this is why I'm not able to take action. And when you will know it, when you will see it, it will start dropping. It sounds like magic. How? But जब तुम उस चीज को देख लोगे, अच्छा इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज तुम्हें जब पता चल गई, तुम्हें दिख गई, then it won't bother you and you will be able to drop it off. अभी तुम्हें पता ही नहीं है ना I कौन है. This I. And you will know the I. Okay, now you can be anything because you know who you are. Okay, last में I would like to talk about meditation, ध्यान. बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी किताबें हैं. In India there are many great ancient Hindu texts. बहुत सारे गुरु हुए हैं हमारे जिन्होंने ध्यान और मेडिटेशन के ऊपर बोला है. But still we are here, frustrated. We don't know anything about our culture, about our text. And it's fine, but let's treat this as a new start, knowing about ध्यान. जैसा मैंने कहा, people have started treating ध्यान and meditation as a task. It is not a task. It is about being, It is about experiencing, what do you say? It's about experiencing universe, or it's about experiencing eternal, whatever you say, whatever word. मैं यहाँ पे word throw करना नहीं चाहता. It's just 5 minutes. And again मैं इसको टाइम भी नहीं बताना, ऐसा भी नहीं करना चाहता कि बस 5 मिनट कर लेना. मैं बस 5 मिनट इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि टाइम हो सकता है यू डोंट हैव दैट मच टाइम, पर यहाँ टाइम मैटर नहीं करता है. हो सकता है कि 5 मिनट में आप वो एक्सपीरियंस कर लें ध्यान, कुछ सेकंड्स में उस नथिंगनेस को, शून्यता को आप ऐसे एक्सपीरियंस कर लें कि 40 मिनट मेडिटेशन ध्यान करने के बाद भी वो एक्सपीरियंस ना हो. इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, राइट? और ये शून्यता, नथिंगनेस क्या होता है? हो सकता है ये हैवी वर्ड्स मैंने फेंक दिए हों आपकी तरफ और आपको समझ ना आया हो. इन कमिंग वीडियोस वी विल टॉक अबाउट इट. बट अभी के लिए ध्यान के लिए आप ये ले लीजिए कि 5 मिनट आप सिर्फ बैठेंगे, सिर्फ आंखें बंद करके स्ट्रेट माइंड बैठेंगे. बस बैठना है. मैं भी नहीं कहूँगा ब्रीथ पे फोकस करो, अभी थॉट्स पे ध्यान लगाओ, मैं नहीं कह रहा. अगर आपको पता है कि अच्छा थॉट्स पर अवेयर होना होता है या सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना ये करना होता है, इफ यू नो एंड इफ यू वांट टू डू इट, प्लीज डू इट. बट मैं ये बहुत ही कोर बिगनर जो ये देख रहा है उसके लिए बना रहा हूँ कि जस्ट सिट 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो एंड व्हाट यू विल एक्सपीरियंस, राइट इट. सिंपल. मैं भी नहीं इसको एडवांस बनाना चाह रहा, मैं वो चीज़ें नहीं देना चाह रहा. क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी सब दे रहे हैं. सो मैं और नीचे जा करके थोड़ा सा इसको बस एक और छोटी सी शुरुआत देना चाह रहा हूँ. सिट विद योरसेल्फ 5 मिनट्स, क्लोज योर आइज, स्ट्रेट स्पाइन एंड सी व्हाटएवर हैपेंस, फील व्हाटएवर हैपेंस एंड आफ्टर 5 मिनट्स राइट whatever you have experienced. Simple. Summarize में अगर बताएं कि पहले क्या है कि spend time with yourself, nature के साथ if you can. Speak less, जब ज़रूरत हो उतना बोलो. Write what you feel, whatever it comes to your mind. Weird है, बेकार है, कोई sense नहीं है, please write it. And third is sit 5 minutes, close your eyes, spine straight, let it happen, whatever happens, see it. And then after that, write it in your notebook, write it in your diary. और जो अभी हमने इतनी बात करी, इनसाइड, इनर वर्ल्ड की, आउटर वर्ल्ड की, वर्ड्स की, एनर्जी की, आई होप कुछ ना कुछ समझ आया हो. और अगर नहीं आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक्स है कि अभी भी बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी वीडियो, इसमें हमने कुछ समझाने की कोशिश करी. तो मोर वीडियोज़ वुड कम ऑन दीज टॉपिक्स, इनर वर्ल्ड, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, knowing yourself and productivity, discipline in a very different way, in a unique way, जैसे मैं समझाऊंगा आपको. So thank you so much for watching video by this end. Please subscribe to the channel, please like and comment your questions, because जो community में build करना चाहता हूँ, जो जिस तरीके से I am trying to serve the people, I need people's question, because question helps you to know yourself. I want to help you in that. So put your questions, कैसा भी हो, weird हो, बेकार हो, कुछ भी हो, please put your questions. I know I sometimes get that appreciation comments, I love that, but उससे ज़्यादा I would love the questions you have for me. So thank you so much for watching this video. Meet you into the next video. Thank you.